Good morning students. Myself Mrs. Sapna Gautam, साइंस टीचर सर्वहितकारी विद्या मंदिर फाजिल का। और सभी कैसे हैं? तो इन द previous video we have studied about chapter 9 reproduction in animals, about sexual reproduction and how embryo develops, how baby deliver from the mother's uterus. तो पूरी प्रोसेस हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। एंड व्हाट आर मेन टाइप ऑफ एनिमल्स, विविपेरस, ओविपेरस। विविपेरस क्या होते हैं? दैट एनिमल्स विच गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, एंड ओविपेरस दैट लेज एग्स एंड फ्रॉम विच देयर बेबीज कम्स फ्रॉम आफ्टर सम टाइम। एंड टुडे we will discuss about asexual reproduction of this chapter. Asexual reproduction. So what is asexual reproduction? Let's talk about this topic. First of all, how can we define it? हम कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी कैन से दैट मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट when joined together then make zygote in the case of sexual reproduction we have studied. Okay, but in the case of asexual reproduction there is no male gamete and female gamete, there is no reproduction, no zygote formation, no fertilization, only single parent is involved for the asexual reproduction. Okay, सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज नॉन एज asexual reproduction. So there are some methods, some organism we will talk about in which asexual reproduction occur. First, budding. First example is budding. So we will see budding in the case of hydra. This is hydra. We can see budding in hydra. hydra में कैसे budding होती है? तो in hydra there are many bulges. क्या होते हैं? bulges होते हैं, known as also bud. We can say also bud. When bud or bulges grow from the hydra's body, parent body, then it may develop, and after some time they grow and complete organism will be formed, and this may detach from parent body, and full hydra, complete hydra is obtained. We can see complete hydra is obtained. Clear? Is that clear? In the case of hydra there are many bulges. They may have bulges और bud भी बोलते हैं इसको. They develop in the parent body. From the parent body these buds are developed, and after some time these buds fully developed and detach, अलग हो जाते हैं, detached from parent body.
from parent organism and exist in complete organism. ओके, तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के रूप में ये पाए जाते हैं. दैट इज सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन द केस ऑफ हाइड्रा. तो बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और जब वो डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनमें से हाइड्रा क्या हो जाता है, डिटैच होके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है. दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड इफ यू टेक सेकंड एग्जांपल, दैट इज बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन. This example we can see in the case of amoeba. Binary means two. Binary means two और fission means split होना, टूटना. जब टू पार्ट्स में ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है और इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी पूरी क्या करता है, सर्वाइव करता है, दैट इज़ नॉन एज बाइनरी फिशन. एंड दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So we will see in the case of amoeba, it has irregular shape, you know that, and this is nucleus. After that, when they join, then these nuclei may join, and after some time they will separate. They will separate and they have single nucleus in daughter amoeba. Each amoeba has its own nucleus. These are known as daughter amoeba. इन्हें हम डॉटर अमीबी बोलते हैं. और जैसे ही न्यूक्लियस इनका ज्वाइन होता है तो उसके बाद ये स्प्लिट हो जाते हैं और टू पार्ट्स में हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम डॉटर अमीबी बोलते हैं. और फिर ये अमीबा अपनी लाइफ सर्वाइव करता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो दैट इज़ पेरेंट प्लांट में से, पेरेंट ऑर्गेनिज्म में से कैसे न्यूक्लियस डिवाइड होता है. डिवाइड होके ये सिंगल न्यूक्लियस में फिर दो पार्ट्स में, ये अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है और इसे हम डॉटर अमीबी बोलते हैं. तो दैट मेथड इज यूज्ड, वी कैन सी इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट इज बाइनरी फिशन, कि कैसे अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड होकर के और दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, उसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन. और इफ यू टॉक अबाउट मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? दिस टर्म इज लेफ्ट फ्रॉम दिस चैप्टर इन द प्रीवियस वीडियो. मेटामॉर्फोसिस if we talk about aquatic animals like frog, not only in the case of frog, many insects have, or many like silkworm, कैसे इनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं फ्रॉम द एग. फ्रॉग में से एग निकलते हैं
देयर आफ्टर लार्वा, फिर टैडपोल, टैडपोल फ्रॉग के बेबी को बोलते हैं, और देयर आफ्टर टैडपोल जब लार्ज होता है, बड़ा होता है, लेटर टैडपोल बनता है, और आफ्टर दैट एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो ये सारी प्रोसेसेस जो होती हैं, ये चेंजेस जो होते हैं, लार्वा कैसे बड़ा होके एडल्ट बनता है, उन चेंजेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। द प्रोसेस in which larva changes into adult frog, known as due to drastic changes, बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस लार्वा चेंजेस इनटू एडल्ट ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस नॉन एज मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसी तरह सिल्क वॉर्म में से भी, सिल्क वॉर्म का अगर एग्जांपल लें तो उसमें से एग सिल्क वॉर्म मलबरी लीव्स पर रहता है, उसमें जैसे एग निकलते हैं आफ्टर कैटरपिलर, और उसके बाद सिल्क मोथ हमें मिलता है। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं इनको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टर्म IVF। IVF क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। In vitro fertilization means fertilization that take place outside the female body. Fertilization that take place outside the female body. So some women have blocked oviduct। हमने ये पढ़ा था सेक्स रिप्रोडक्शन में, मेल gamete, female gamete, when egg and sperm are fused in the oviduct, then they will form zygote. But in some cases, women have oviduct blocked, जिनमें जो oviduct होती हैं ये क्या होती हैं? ब्लॉक्ड होती हैं। ब्लॉक्ड होती है मतलब कि जब ये ब्लॉक होंगी तो यहाँ से एग तो रिलीज होंगे ओवरी में से, ओवरी में से एग तो रिलीज हो जाएंगे, बट स्पर्म्स डज नॉट एंटर इन द ओविडक्ट। स्पर्म डज नॉट एंटर इन द ओविडक्ट बिकॉज ओविडक्ट इज ब्लॉक्ड। जब ओविडक्ट ब्लॉक होती है तो एग तो रिलीज होते हैं ओवरी में से, ओविडक्ट में पहुंच गए, लेकिन स्पर्म्स डू नॉट enter in the oviduct। जब ये ओविडक्ट में स्पर्म्स एंटर नहीं होते तो स्पर्म और एग डू नॉट फ्यूज नहीं होंगे। स्पर्म्स एंड एग्स विल नॉट fuse, and when they will not fuse, then fertilization does not occur। fertilization occur नहीं होगा। तो this type of fertilization, when women have blocked oviduct and sperms do not enter in the oviduct and will not fuse with the eggs, then in case doctors collect फ्रेशली, डॉक्टर्स क्या करते हैं? फ्रेशली एग कलेक्ट करते हैं एंड दे फ्यूज विद स्पर्म्स। दे
fuse with sperms and keep it freshly, collect eggs and sperms and keep for a week, for कुछ घंटों के लिए, हफ्तों के लिए इसको क्या करते हैं, रख देते हैं फ्यूज़ होने के लिए. When fertilization occurs, then zygote is formed and this zygote is placed inside the women's uterus. कि वीमन के यूट्रस में ही क्या होगा, वीमन का जो यूट्रस होता है, यूट्रस में ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, देन इन दैट केस जाइगोट को यहाँ पर क्या करवा देंगे, जाइगोट इज प्लेस्ड इन द वुमेन्स यूट्रस एंड इन दैट पार्ट एम्ब्रियो डेवलप्स. क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और आफ्टर दैट, आफ्टर 9 months और 9.5 month, baby will deliver from mother's uterus. So this type of baby which fertilized outside the female body, this type of fertilization that occur outside the female body known as external fertilization. Outside the female body known as external fertilization, and these babies are known as test tube babies. इन बेबीज को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज. टेस्ट ट्यूब बेबीज क्योंकि फर्टिलाइजेशन बाहर होता है वीमेन बॉडी के और बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है यूट्रस के अंदर. बाकी सारे प्रोसेसेस वैसे ही होते हैं जैसे कि नॉर्मल बेबी का बॉर्न होता है, वैसे ही इसका भी होता है टेस्ट ट्यूब बेबी का. इसीलिए इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF का मतलब इन विट्रो fertilization that take place outside the female body, and babies are known as test tube babies. And in this chapter we have studied all topics related to this chapter: sexual reproduction, asexual reproduction, viviparous, oviparous, and asexual reproduction like in amoeba, budding in hydra, and in the last page of this chapter we can see the story of Dolly also. I have told you story of Dolly in online class, so only we will discuss the definition of cloning. Cloning क्या होती है? Cloning means there is exact copy. अगर हम कहते हैं कि सेम ऑर्गेनिज्म जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया है तो दैट इज क्लोनिंग. क्लोनिंग मीन्स एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ पार्ट ऑफ सेल और फुल ऑर्गेनिज्म, किसी भी सेल के पार्ट का और पूरे ऑर्गेनिज्म की जो एक एग्जैक्ट कॉपी होती है उसे हम क्लोनिंग कहते हैं. तो ये स्टोरी को आपने you have to read out properly. If you have any doubt, then we will discuss in today's doubt class also, and draw all the pictures of this chapter, and you may fill also colors. You may fill colors also in the pictures and write down and learn all these chapters. And I will also revise your
unit test syllabus chapter 4, 5, 6 in today's class. ओके, सो प्लीज़ अटेंड कीजिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और अपना काम कंप्लीट करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।